Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. Let's start our today's lecture. The first sum is find the intervals in which fx is equal to 3 by 10 x raised to 4 minus 4 by 5 x cube minus 3x square plus 36 by 5x plus 11 is number A strictly increasing, number B strictly decreasing. Answer here. Fx is equals to 3 by 10 x raised to 4 minus 4 by 5 x cube minus 3x square plus 36 by 5x and plus 11 be given function. Now differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to 12 by 10 x cube minus 12 by 5 x square minus 6x and plus 36 by 5. Now for f is increasing or decreasing, take f dash of x is equal to 0. That implies 12 by 10 x cube, 12 by 5 x square, 6x plus 36 by 5 is equals to 0. Now taking 6 by 5 as a common, this is 5 and this 6, so 6 by 5 taking as a common, so we get x cube minus यहाँ पे कितना रहेगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में 5 नहीं था पर बाहर निकाल लिया, वो 5 हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, माइनस 5x एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. नाउ 6 बाई 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा. अभी इसका अब हमें क्या करना है, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, मतलब इसका हमें सॉल्यूशन करना है. सबसे पहले हम एक जीरोस फाइंड कर लेते हैं, मतलब x के एक वैल्यू हम सबसे पहले फाइनलाइज कर देंगे और उसके बाद आपको पता ही होगा कि हम कैसे करते हैं. एक स्टेप छोड़ने के बाद आगे का स्टेप हम करते हैं, बराबर. तो एक्स क्यूब सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो 1 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 1, माइनस 1 माइनस 5 दैट मीन्स माइनस 6 एंड प्लस 6 दैट मीन्स 0. दैट मीन्स these cubic equations for one solution is x is equal to 1. That means if we convert into factor form, that means we get x minus 1. So taking x minus 1 as 3 times because we have a cubic equation is equals to 0. Now here x cube and we have raised to 1, so we remaining how much remain, x square. Okay, so x square हमें यहाँ पे चाहिए था, बराबर ना, क्योंकि हमारे पास x is to 1 तो ऑलरेडी है ही, तो हमें एक्स स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अभी ब्रैकेट में जाएगा, सो रिवर्स स्टेप हम करेंगे तो एक्स क्यूब यहाँ पे होगा. सो देखो फर्स्ट मैच हो गया, अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, अभी यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, सो वी रिक्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑल्सो, सो हियर वी मे राइट माइनस एक्स स्क्वायर. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक्स ही है, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एंड द नेक्स्ट आंसर इज माइनस माइनस प्लस एक्स. So we have minus 5x, so we must take minus 6x because minus 1 minus 6 plus 1 minus 6, that means we get minus 5. So here we have already x, so we just multiply by 6 minus 6, so minus minus plus 6 is equals to 0. and verify कैसे करेंगे आप, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम होना चाहिए. हो गया, वेरी गुड. चलो अभी x माइनस 1 को हम कॉमन आउट ले लेते हैं, सो द रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 is equals to 0. So that implies solving this quadratic equation we get 6 1s are 6 and 3 2s are 6, so we get x square minus 3x minus 2x minus 6 is equals to 0. So that implies x minus 1, taking x as a common, so the remaining term is x minus 3 minus 2 as a common, so in a bracket x minus 3 is equals to 0. So finally we get x minus 1, x plus 2 and x minus 3 is equals to 0. So finally the values of x is equal to 1, x is equals to minus 2 and obviously x is equals to 3. So हमें जो फोकस करना है वो कौन सा स्टेप है, ये वाला स्टेप पर हमें फोकस करना है.
चलो इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे. सो फाइनली वी गेट दिस इज प्लस इन्फिनिटिव, दिस इज माइनस इन्फिनिटिव, 0, 1, 2, 3 and 4, -1, -2 and -3. So first one is x is equal to 1 here, x is equal to 3 here, and x is equal to -2 which is here. चलो तो हमारे इंटरवल कौन से होंगे. सबसे पहला इंटरवल हमारा x लेस देन -2. सो इन इंटरवल फॉर्म -∞, -2. द सेकंड इंटरवल विच इज -2 लेस देन x लेस देन 1 in any inequality form, and the interval form which is -2, 1, and similarly 1 less than x less than 3 in a inequality form, and in an interval form which is 1, 3, and similarly x greater than 3, and in an interval form 3, infinitive. So let's check for these 4 intervals in which interval our function is strictly increasing and in which interval our function is decreasing. So first one, x less than -2. For x less than -2, taking x less than -2 as a 3 times, because we have 3 factors, x minus less than x minus 2. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर पे फोकस करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो x -1 लेस देन -3 विच इज लेस देन, क्योंकि -3 से हमारा x -1 के साथ लेस नंबर है तो ऑब्वियसली 0 से भी लेस नंबर ही होगा. सो दैट इम्प्लाइज x -1 विच इज लेस देन 0. नाउ taking +2 on both the side we get x +2 which is less than 0. इसका मतलब ये भी हमारा नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया. अभी फाइनली -3 on both the side we get x -3 less than -3 -2 that means -5 से छोटा है, ऑब्वियसली 0 से भी छोटा ही होगा. सो x -3 which is less than 0. सो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. दैट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट पॉजिटिव नेगेटिव फाइनली वी गेट नेगेटिव. सो देयरफॉर x -1, x +2, and obviously x -3 which is less than 0. So that implies f dash of x which is less than 0. Hence f is strictly decreasing in -∞, -2. Now for second one, for -2 less than x less than 1. चलो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी -2 लेस देन x लेंगे. तो सब हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे तो 0 लेस देन x +2. सो दैट इम्प्लाइज x +2 विच इज ग्रेटर देन 0. अभी हम सेकंड पॉसिबिलिटी क्या लेंगे, सो x लेस देन 1 टेकिंग x लेस देन 1. नाउ सब्सट्रैक्टिंग बाय 1 ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट x -1 लेस देन 0. सो आप देख सकते हैं नेगेटिव. एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी वो भी हम x लेस देन 1 ही लेंगे. क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग बाय -3 on both the sides, so we get x -3 less than 1 -3 we get -2. obviously -2 से लेस नंबर है तो 0 से भी लेस नंबर ही होगा. so x -3 which is less than 0. so here the x -1 is negative and x -3 which is also negative, so negative negative positive, and obviously positive positive be positive. therefore x -1, x +2 and x -3, the multiplication which is positive, so that implies f dash of x which is greater than 0. hence f is strictly increasing in -2, 1. so the third interval which is 1 less than x less than 3. for सबसे पहले first possibility and then the second possibility. the first possibility में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे. so 0 less than x -1, so that implies x -1 greater than 0. second possibility में obviously -3 करेंगे, so x -3 less than 0. and third में हम क्या करेंगे, x less than 3 ले लेते हैं, बराबर. so that implies +2 करेंगे, so x +2 less than 2 + 3 that means 5. मतलब 5 से छोटा है तो obviously 0 से भी छोटा ही होगा. so x +2 which is less than 0. so you can observe x -3 is negative, x +2 which is also negative, so negative negative positive. यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा, बराबर. क्यों 0 आएगा, क्योंकि अगर आप 1 लेस देन x लेस देन 3 पर फोकस करेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या +2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, +2 1 + 2 दैट मीन्स 3, x +2 लेस देन 5.
मतलब हमारा जो x प्लस 2 का आंसर है 3 से 5 के बिटवीन आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली 0 से कैसा होगा, बड़ा ही होगा। समझ में आ गया, 0 से बड़ा ही होगा, बराबर। देयरफॉर ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पर एक नेगेटिव हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर x माइनस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 3 विच इज लेस देन 0, सो दैट इम्प्लाइज f डैश ऑफ x लेस देन 0। यहाँ समझ में आया स्टूडेंट्स, x प्लस 2 का आंसर भले ही 5 से छोटा होगा पर 0 से बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हम ये पूरा इंटरवल में अगर हम पुट करके देखेंगे ना, तो आप प्लस 2 कर, सिर्फ हमें प्लस 2 करना है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3 और यहाँ पे प्लस 2 5, मतलब 3 और 5 के बिटवीन इसका आंसर आएगा, तो ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही होगा। सो हेंस f is strictly decreasing in 1,3, and now finally the final interval which is for x greater than 3, taking x greater than as a 3 times, because we have 3 factors, x greater than 3 and x greater than 3. So that implies first we do subtracting by 1, so x minus 1 greater than 3 minus 1, that means 2, 2 से बड़ा है, obviously 0 से बड़ा ही होगा, so that implies x minus 1 greater than 0. सबसे पहले प्लस 2 करेंगे, so x plus 2 which is greater than 5, 5 से बड़ा है तो obviously 0 से बड़ा ही होगा, so x plus 2 which is greater than 0, and finally x minus 3 greater than 0. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, we get b पॉजिटिव, so that implies f dash of x which is greater than 0. Hence f is strictly increasing in 3, infinitive. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा शांति से एक बार रिवाइज कर लो। एग्जाम्पल नंबर 48, शो दैट fx is equal to tan inverse of sin x plus cos x where x greater than 0 is always strictly increasing in 0, pi by 4. So let's see. Answer here, fx is equal to tan inverse of sin x plus cos x where x greater than 0 be given function. Differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to 1 upon, because the derivative of tan inverse of x which is 1 upon 1 plus x square, so the value of x which is sin x plus cos x, so we get 1 plus sin x plus cos x whole square, and again the derivative of sin x plus cos x which is cos x minus sin x, because the derivative of sin x which is cos x, and obviously the derivative of cos x which is minus sin x, so that implies f dash of x is equals to cos x minus sin x divided by 1 plus, open this square, we get sin square x plus 2 sin x plus cos x and plus cos square x, so finally we get f dash of x is equals to cos x minus sin x divided by, अब यहाँ पे मैं एक अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको उस पर फोकस करना है, the value of sin square plus cos square x, that means the first formula of our trigonometric function which is given us 1, so obviously we have plus 1 already, so 1 plus 1 that means 2 plus 2 sin x into cos x. ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट स्टेप आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये प्लस 2 कॉमन आउट ले लूँगा, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? बिकॉज वी हैव द हाफ फार्मूला ऑफ sin 2x, वी गेट 2 sin x cos x, so cos x minus sin x divided by 2 plus sin 2x, so this is your final f dash of x, because हमें ऑलरेडी इंटरवल क्वेश्चन में दिया ही, हमें ये इंटरवल में इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। सो फॉर x for 0 less than x less than pi by 4 or x belongs to 0, pi by 4। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसे यहाँ पे मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
चलो इसके लिए मैं cos x ग्रेटर देन sin x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा इंटरवल है मतलब 0 से π/4 उसमें हमारा cos x की वैल्यू sin x के कैसे बड़ी होगी, कैसे बड़ी होगी। सो ये देखिए ये 1 ही है, ये 0 और ये -1। सो दिस इज π/2 एंड ऑब्वियसली द बिटवीन π/4 दिस इज पाई। सो आप देख सकते हैं कि cos 0 मतलब 1 होगा एंड sin 0 विच इज 0। सो ये जो वैल्यू है यहाँ पे दोनों क्या होंगे, यहाँ पे दोनों का सेम वैल्यू आएगा। मतलब आप यहाँ पे अगर आप ऐसे करेंगे, ओके, सो ये कौन सा ग्राफ का वो है, साइन का, मतलब साइन एक्स, और ये हमारा कॉस एक्स का है, बराबर ना। तो आप देख सकते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यूज है 0 से π/4 के, आप x इज इक्वल टू 0 से π/4 के बिटवीन कोई भी वैल्यू लेंगे, बराबर, तो उसका आंसर आपको 0 से किसके बिटवीन, हाफ के बिटवीन ही मिलेगा। किसका, तो साइन एक्स का वैल्यू आप देख सकते हैं, बराबर ना, यहाँ तक। और ऑब्वियसली आप कॉस की बात करेंगे तो कॉस की वैल्यू किस कहाँ से कहाँ बिटवीन मिलेगी, तो हाफ से लेके 1 के बिटवीन मिलेगी, बराबर ना। कौन सी, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 से π/4 के बिटवीन कोई भी वैल्यू आप x इज इक्वल टू पुट करेंगे तो कॉस एक्स का आंसर आपको 0.5 मतलब हाफ से लेके 1 तक ही आपको मिलेगी, उसके बीच में मिलेगी। और सिमिलरली अगर 0 की x की वैल्यू 0 से π/4 के बिटवीन कोई भी आप लेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू आपको 0 से लेके हाफ के बिटवीन कोई भी आपको वैल्यू मिलेगी। तो आपको ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि ये जो आपका ग्राफ है और ये आपका ग्राफ, तो ये ग्राफ नीचे है और ये ग्राफ ऊपर है, मतलब कॉस वाला आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। सो दैट इम्प्लाइज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं हम, क्योंकि माइनस हमने क्या किया, साइन के साथ सब्सट्रैक्ट किया। सो एक का आंसर हमें मिल गया न्यूमरेटर का, अभी हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की। सो हियर 0 लेस देन x लेस देन π/4, सो दैट इम्प्लाई मल्टीप्लाइंग बाय 2, सो 0 लेस देन 2x लेस देन π/2, दैट मीन्स साइन 2x का आंसर हमें क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि 2x किसके बिटवीन है, तो 0 से लेके π/2 के बिटवीन, दैट मीन्स इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली साइन इज अ पॉजिटिव नंबर। सो अगर हम +2 करेंगे ऑन बोथ द साइड, सो 2 प्लस साइन 2x ग्रेटर देन 2, सो दैट मीन्स 2 से बड़ा है, ऑब्वियसली 0 से भी बड़ा ही होगा। सो 2 प्लस साइन 2x विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, 2 प्लस साइन 2x का आंसर अगर हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो उसको हम डिनोमिनेटर में भी अगर रख देंगे, तो 2 प्लस साइन 2x करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आंसर भी मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर 0 से बड़ा, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू डॉट समथिंग मिलेगा, बराबर। तो वो वैल्यूज में 1 बाई 1 डिनोमिनेटर में रखूँ, दैट मीन्स 1 बाई 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 अप टू डॉट 1 अपन समथिंग, तो उसका आंसर ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग। इन शॉर्ट मेरा कहने का मीनिंग है 0 से बड़ा ही होगा। अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देयरफॉर cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाय 2 प्लस sin 2x विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 मिलेगा, एंड दैट इम्प्लाइज एफ डेस ऑफ x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। किस में, तो कि 0, π/4 में। हेंस f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस में, तो कि इन 0, π/4। क्या प्रूफ करना था, ये है ना, यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था, बराबर ना, जो हमने प्रूफ कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये रीज़न समझ में आ गया। cos x ग्रेटर देन sin x क्यों लिखा, क्योंकि 0 से लेके π/4 के बिटवीन आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका cos x का आंसर sin x के आंसर से बड़ा ही आएगा, बराबर ना। ओके, लार्जर नंबर देन sin x, लार्जर आंसर देन sin x आंसर, समझ में आ गया। सो उसके बाद हमने sin x के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वी गेट sin x माइनस cos x ग्रेटर देन 0। और ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही चल गया होगा, ये x की रेंज है 0 to π/4, तो ऑब्वियसली 2x की रेंज 0 to π/2 ही आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 2x विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। +2 करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा आपके सामने सॉल्यूशन अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार सॉल्यूशन देखो। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज एक्सरसाइज 6 सिक्स्थ सम, फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x is strictly increasing, number 2 strictly decreasing. So answer here, fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x whole divided by 2 plus cos x be given function. इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मतलब थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो 4
sin x, taking minus x as a common, we get in a bracket 2 plus cos x whole divided by 2 plus cos x. So that implies fx is equal to, we have here two terms, the first one is this one and the second one is this one. So the denominator give it separately in this डिनोमीटर एंड ऑब्वियसली इन डिनोमीटर, मतलब ये 2 प्लस कॉस एक्स है ना, वो दोनों को इंडिविजुअली डिनोमीटर दे देते हैं. सो 4 sin x होल डिवाइड बाई 2 प्लस cos x माइनस दिस बोथ आर कैंसल. सो फाइनली वी गेट सिंपली x बिकॉज 2 प्लस cos x कैंसल इन डिनोमीटर एंड न्यूमरेटर ऑल्सो. सो आप देख सकते हैं ये ऐसा फॉर्म हमें मिला. और अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो एक्सरसाइज 6.2 में ऐसा हमने एक सम किया था जो कि हमारा थीटा के फंक्शन में फॉर्म में था, बराबर. जो थीटा फंक्शन था ना उसके फॉर्म में हमारे पास था, बराबर, सेम एज है. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get what we get f dash of x. Here we apply our division rule in derivative. So denominator which is constant and the derivative of numerator which is 4 cos x minus 4 sin x which is constant, and obviously the derivative of denominator which is 0 plus 0 plus minus sin x. So we get finally minus sin x and whole divided by 2 plus cos x the square of denominator and minus the derivative of x with respect to x which is 1. So that implies f dash of x is equals to, अब यहाँ पे 4 cos x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट x 8 cos x एंड प्लस 4 cos square x. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 sin square x. सो होल डिवाइड बाई 2 प्लस cos x whole square and minus 1. So that implies f dash of x is equals to, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 4 कॉमन आउट ले लेंगे तो आपका फर्स्ट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक मिलेगा जिसका आंसर आपको 1 मिलेगा. सो वी गेट 8 cos x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1. सो दैट इम्प्लाइज f dash of x is equal to 8 cos x plus 4 taking a LCM and we get, and obviously open the square, we get 4 plus 4 cos x and plus cos square x and whole divide by 2 plus cos x whole square. So that implies minus taking in a bracket we get f dash of x is equals to 8 cos x plus 4 minus 4 cos x minus cos square x and whole divide by 2 plus cos x whole square. So here plus 4 minus 4 cancel and 4 cos x minus 8 cos x minus 4 cos x, that means we get f dash of x is equal to 4 cos x minus divided by 2 plus cos x whole square. Now taking cos x as a common in a numerator we get f dash of x is equal to cos x and in a bracket 4 minus cos x and divide by 2 plus cos x whole square. So this is your final f dash of x. Now condition, now for f is increasing or decreasing, take f dash of x is equals to 0. So that implies हमारे पास f dash of x क्या है, cos x in a bracket 4 minus cos x whole divided by 2 plus cos x whole square is equals to 0. सो हमें जो फोकस करना है, हमारा जो जितने भी इंटरवल्स हमें मिलेंगे उसमें जो हमें फंक्शन क्रिएट करना है वो हमारा फंक्शन ये होगा. ओके, सो दैट इम्प्लाइज ये जो डिनोमीटर में जो टर्म है वो उधर जाके 0 के साथ 0 हो जाएगा. सो cos x in a bracket 4 minus cos x is equals to 0. That means we have two possibilities, cos x is equal to 0 or 4 minus cos x is equal to 0. So that implies cos x is equal to 4, but which is not possible because the reason is minus 1 less or equal to cos x less or equal to 1. The reason is because the range of cos x which is -1 to 1 है, मतलब cos x का आंसर आपको किसके बिटवीन मिलेगा, -1 से लेकर 1 के बिटवीन ही मिलेगा. -1 से कम भी नहीं या 1 से ज़्यादा भी नहीं. तो
तो cos x इज इक्वल टू 4 नॉट पॉसिबल होगा. सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू z. ये हम ले सकते हैं. चलो अभी हमारे पास इंटरवल, अभी ये क्वेश्चन में आपको पता होगा स्टूडेंट्स के x का जो लिमिट है वो आपको दिया नहीं है कि x बिलोंग्स टू क्या है. तो ऐसा कोई भी सम होगा ना तभी आपको क्या समझना है, और cos x sin x मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, और उसके लिए अगर आपको जो इंटरवल के लिए जो आपको इंटरवल चाहिए था, बराबर ना, इंटरवल, तो आपको कौन सा इंटरवल आपको फाइनल, तो 0,2 पाई मतलब एक हमारा फुल सर्कल, बराबर ना, फुल सर्कल 0 to 2 पाई वो आपको ले लेना है, बराबर. तो सबसे पहले फॉर n इज इक्वल्स टू 0 we get x is equals to pi by 2. Then for n is equals to 1 we get x is equals to 3 pi by 2, and obviously for n is equals to 2 we get x is equals to 5 pi by 2, because 0 पुट करेंगे तो pi by 2, 1 पुट करेंगे 2 plus 1 pi 3 pi by 2, 2 पुट करेंगे 2 to the 4 plus 1 5 pi by 2, but x belongs to open 0 comma 2 pi, that's why we take x is equals to, therefore we take pi by 2 and x is equals to 3 pi by 2. अभी ये दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे, और नंबर लाइन भी हमारा कौन सा लिमिट वाला है बराबर. ये हमारा होगा 0 और ये होगा हमारा 2 पाई, और एग्जैक्ट बीच में हमारा 0, उसके बाद पाई बाई 2, ये हमारा पाई और ये हमारा 3 पाई बाई 2. तो हमारा पाई बाई 2 एक वैल्यू है और हमारा 3 पाई बाई 2 दूसरा वैल्यू है. सो फाइनल हमारा इंटरवल कौन से मिलेंगे, सो 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2, एंड ऑब्वियसली 3 पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन 2 पाई. So interval form is 0 comma pi by 2, pi by 2 comma 3 pi by 2 and 3 pi by 2 comma 2 pi. चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले इंटरवल की. हमारा पहला इंटरवल कौन सा है, 0 comma pi by 2 है. सो फॉर 0 लेस देन x लेस देन pi by 2, फर्स्ट इंटरवल है ना, फर्स्ट इंटरवल में हमें जो फंक्शन फोकस करना है वो ये वाला फंक्शन है. तो फर्स्ट, हाँ अभी एक बात कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर है ना, ओके, यहाँ हमारे जितने भी इंटरवल हो, 1 हो 2 हो या 3 हो, कोई भी इंटरवल क्यों ना हो, सभी इंटरवल में उसका आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा. तो सबसे पहले हम वो फाइनलाइज कर देते हैं. सो 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0. अभी ये पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली उसका हम डिनोमिनेटर करेंगे 2 प्लस cos x, उसका भी आंसर होल स्क्वायर का आंसर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही आएगा. अभी फर्स्ट इंटरवल है तो ऑब्वियसली cos x का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा. सो दैट इम्प्लाइज 4 माइनस cos x, तो उसका आंसर भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा. क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि cos x की रेंज हमें पता है. cos x की रेंज क्या है, सो -1 से लेके 1 है, बराबर ना. इसका मतलब कि 0 to पाई बाई 2 के बिटवीन x की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इफ यू पुट एनी वैल्यू between 0 to pi by 2, if you take or put any value of x between these interval, that means 0 to pi by 2, then you get the answer is -1 to 1, मतलब -1 से 1 के बिटवीन ही आपको आंसर मिलेगा. और अगर आप cos x के यहाँ पे रिप्लेस में -1 से लेके 1 के बिटवीन का कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, सपोज -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू हमें 5 मिलेगा. मिनिमम वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 4 - 1 दैट मीन्स 3 मिलेगा. ओके, तो इसका आंसर आपको फाइनली क्या मिलेगा, तो 0 से तो बड़ा ही होगा. तो ये 4 माइनस कॉस एक्स का ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर. अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट इम्प्लाइज कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव ही मिलेगा, बराबर. अभी ये दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो फाइनली वी गेट कॉस एक्स इन अ ब्रैकेट 4 माइनस कॉस एक्स एंड होल डिवाइड बाई 2 प्लस cos x and whole square which is greater than 0, and that implies f dash of x which is greater than 0. अब इसका मीनिंग क्या है, तो हमारा जो फंक्शन है, hence f is strictly increasing
इन 0, π/2. ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरवल, दैट मीन्स फॉर π/2 लेस देन x लेस देन 3π/2. दैट मीन्स हमें कौन सा इंटरवल, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करनी है. पर आपको पता ही है कि बाय द रूल ऑफ OLSTC वी नो दैट द फंक्शन cos x विच इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. सो अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं. पर जैसा कि मैंने बोला कि 2 प्लस cos x का आंसर होल स्क्वायर का आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, फिर चाहे वो कोई भी इंटरवल क्यों ना हो. और ऑब्वियसली उसका हम इन्वर्स करेंगे या उसका इन्वर्स लेंगे तो ऑब्वियसली वो भी आपका आंसर ग्रेटर देन मिलेगा. और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos x का आंसर क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा. एंड दैट इम्प्लाइज 4 माइनस cos x की अभी मैंने बात की, ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, क्योंकि cos x की फाइनल रेंज क्या है, तो -1 से लेके 1 के बिटवीन, एंड -1 एंड 1 ऑब्वियसली इंक्लूड करके ही आपको मिलेगा. मतलब -1 और 1 इंक्लूड होंगे और उसके अलावा उसके बिटवीन का आपको आंसर मिलेगा. समझ में आ गया. तो ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. दैट मीन्स वी गेट cos x इन अ ब्रैकेट 4 माइनस cos x का आंसर अभी फाइनली नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे. सो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. दैट मीन्स फाइनली वी गेट देयरफॉर cos x इन अ ब्रैकेट 4 माइनस cos x होल डिवाइड बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर विच इज लेस देन 0. क्योंकि आपको पता ही है कि एक नेगेटिव होगा तो वो सभी को, जितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, सभी को नेगेटिव कर देता है. सो दैट इम्प्लाइज f dash of x लेस देन 0. हेंस f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किसमें, π/2, 3π/2 में. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेकंड इंटरवल में, बराबर ना. अभी हमारा जो फुल एंड फाइनल लास्ट इंटरवल है उसकी हम बात करते हैं. ओके, सो फॉर 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π. सो ये तो आपको पता है 2 प्लस cos x होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0. सो दैट इम्प्लाइज 1/2 प्लस cos x होल स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0. चलो, जैसा कि मैंने बोला कि बाय द रूल ऑफ OLSTC और फंक्शन cos x विच इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. So 3π/2 less than x less than 2π, that means we have fourth quadrant, and obviously we know that we all are know that in a fourth quadrant our function cos x which is obviously positive. So we may write cos x greater than 0, and that implies 4 minus cos x which is obviously greater than 0, because we know that the range of cos x which is -1, 1, close interval -1, 1, and if we take any value between 0 to 2π, if we take x is equal to any value between 0 to 2π and put in cos x, that means the replace of x, we get cos x answer is -1 to 1, and obviously include -1 and 1 also. And if we put that all value, that means the -1 between -1 and 1 here, okay, and so then we get the answer is 0 greater than 0. मतलब -1 से लेके 1 के बिटवीन का आंसर, अब कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, -1 पुट करेंगे या -0.5, 0 भी पुट करेंगे या 1 या 0.5, कोई भी वैल्यू -1 से लेके 1 तक के बिटवीन का, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 से बड़ा ही आपको आंसर मिलेगा. ओके, सो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. सो cos x इन अ ब्रैकेट 4 माइनस cos x जो अभी क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा. अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो देयरफॉर cos x in a bracket 4 minus cos x whole divided by 2 plus cos x whole square, and which is obviously greater than 0, and finally f dash of x greater than 0. Hence f is strictly increasing in 3π/2, 2π. दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच, यहाँ पे फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नंबर 2 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. दैट मीन्स इन अ इंटरवल, कौन से इंटरवल में, तो कि 0, π/2 एंड 3π/2, 2π, उसमें क्या होगा, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और π/2, 3π/2 हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. सो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 6 का 6th सम, जो अभी मैम ने कंप्लीट किया.
आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा लेंदी है पर और स्टेप्स भी थोड़े डिफ़िकल्ट जैसे लग रहे हैं, पर आप अगर एकदम इजी वे में आप समझने की ट्राई करेंगे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सभी जितने स्टेप्स मुझे करने चाहिए वो सभी स्टेप मैंने कर दिया। अगर हमें इससे ज़्यादा स्टेप करना होगा वो भी हम कर सकते हैं, पर उसका कोई मीनिंग नहीं है, बराबर, क्योंकि इसका मीनिंग एक ही है कि हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा। ओके, लेंदी सम हो जाएगा। इसलिए मैंने जितने भी स्टेप्स यहाँ आपके सामने किए हैं ना, वो सभी स्टेप्स इनफ है। ओके, तो आई थिंक आपको एक बार आपके सामने सॉल्यूशन रख रहा हूँ, आप शांति से एक बार देख लो, बराबर। ये लो, सबसे पहले इतना देखो सॉल्यूशन, उसके बाद मैं दूसरा नीचे का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सो ये कैसा लगा, ये आपको सम अच्छा लगा, मज़ा आया? इसमें हमने कई रूल अप्लाई किया, OLHTC का अप्लाई किया, प्लस माइनस वाला भी अप्लाई किया, और उसके अलावा साइन और कॉस में से बड़ा मतलब कॉस का जो रेंज है उसका भी हमने यूज़ किया। और उसके बाद ये हमारा, ये देखो यहाँ पे हमने कॉस की वैल्यूज़ 4 माइनस कॉस एक्स, दैट मीन्स कॉस एक्स को 4 हम नहीं ले सकते बिकॉज द रेंज ऑफ कॉस विच इज़ -1 to 1। ओके, तो हम यहाँ पे ये नहीं ले सकते। सो x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 हमारा फाइनल आंसर होगा, वेर n बिलोंग्स टू z। अभी हमने n इज इक्वल टू 1/, सबसे पहले 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, पर 2 पुट करने के बाद हमारे पास 5/2 आंसर मिला, जो कि आउट ऑफ 2π हो जाएगा, मतलब जो हमारा इंटरवल है उससे बाहर हो जाएगा। 0 to 2π मतलब हमारा पूरा सर्कल हो जाएगा। सो उसके सर्कल में हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू हमें मिलेंगे, π/2 और 3π/2। उसको हमने नंबर लाइन पर प्लॉट किया तो हमें कुछ ऐसा कुछ दिखा है, और हमें जैसे हमने नंबर लाइन पर उसको प्लॉट किया तो हमें 3 इंटरवल हमारे पास मिले हैं। एक हमारा इंटरवल 0π/2, π/2 3π/2 एंड 3π/2 2π। तो पहले इंटरवल की हमने बात की, ऑब्वियसली पहले इंटरवल में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होंगे तो इसमें यहाँ पे जो हमें ये फंक्शन क्रिएट करना था वो भी ऑब्वियसली हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो आप देख सकते हैं उसको भी हमने पॉजिटिव प्रूफ कर दिया, विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और दूसरे और तीसरे इंटरवल मतलब π/2 to 3π/2, दैट मीन्स हमारे 2 इंटरवल कवर हो गए। कौन कौन से? एक तो π/2 से लेके पाई और पाई से लेके 3π/2, मतलब हमारा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट दोनों हम उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं वो दोनों क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली हमारे बाय द रूल ऑफ OLHTC नेगेटिव होगा cos x, बराबर ना। तो एक हमारा cos x नेगेटिव हुआ यहाँ पे, बराबर ना, सिर्फ cos x हमारा नेगेटिव हुआ। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1/2 प्लस cos x होल स्क्वायर वो भी पॉजिटिव है, और 4 माइनस cos x वो भी पॉजिटिव ही है। बट एक हमारा नेगेटिव निकला, इसके लिए हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शन होगा f(x) वो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी गेट f(x) लेस देन 0, एंड दैट्स वाई वी गेट f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to 3π/2, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। एंड फाइनली अवर लास्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन फोर्थ क्वाड्रेंट, इट मीन्स 5/2 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π, और ऑब्वियसली बाय द रूल ऑफ OLHTC हमारा आवर फंक्शन cos x विच इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट्स वाई वी गेट b पॉजिटिव। सो हियर कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6 सम, एक बार देख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने टोटल 3 सम्स देखे, और तभी के सभी सम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जाम ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली फॉर स्कूल एग्जाम एंड ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम। तो आज हमारे से ये 3 सम्स होंगे, क्योंकि सभी के सभी सम्स लेंदी थे और इम्पॉर्टेंट थे इसलिए। और उसके बाद जो भी हमारे सम्स बाकी है उसमें से भी थोड़े 2-3 सम हमारे इंपॉर्टेंट है और लेंदी होंगे। सो आज तो नहीं हो पाएगा, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब हम उसको कंप्लीट करेंगे। और हाँ, दूसरी बात, अभी हमारे 5 या 6-7 सम्स ही हमारे रिमेनिंग है, डिपेंडिंग ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, जो टॉपिक हमारा है वो अभी कंप्लीट होने में 6-7 सम्स ही रिमेनिंग है। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो सके, नहीं तो हम 2 लेक्चर्स, मिनिमम 2 लेक्चर तो हमारे लगेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। ओके, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। सो आज हमने 3 सम्स किए, सभी सम्स आपको एक बार रिवीजन करना है। ओके, एक बार और शांति से देख के समझ के सीखना है। समझ में आ गया? अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टूडेंट्स। थैंक यू।